truly inspiring personality in front of us, Shefali Chopra. She is a TEDx speaker, storyteller, motivational speaker, and a theatre exponent. She has spent over 20 years transforming lives through power of words and stories. Fondly, she is known as Ramta Ram, the wandering soul. Shefali has founded the SAL Tree Academy, where she trains people in effective communication and storytelling. She has written and directed impactful plays like Ganga, Satya, and Main Udna Chahta Hoon, leaving a lasting impact on audience. Beyond storytelling, she is a social change maker, empowering communities, inspiring students, and advocating for positivity through her Creating Smile initiatives. She has been featuring in newspaper and various national TVs for her incredible work in uplifting women's and village communities. Today we are honored to have her with us. She's ready to inspire and enlighten us with her knowledge and experience. Let's give a warm welcome to Ms. Shefali Chopra. कभी हम लोग खुद से भूल जाते हैं कि हमने क्या किया है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं कहानीकार हूँ एंड आज मैं आप सब लोगों के बीच आई हूँ जो पोएट्स हैं, ऑथर्स हैं। उल्टा मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। यस, सो मैम हमारे सामने है। So here I will ask few questions out of curiosity. While reading your profile, ma'am, I was like thinking, oh my God, she has done so many things, and you inspired me a lot. We also have similar background. She has also done management studies, and I'm also a student and now a professor of management. So yes, quite a similar background. And while reading your profile, I was inspired. So I had some curiosity in my mind. So I would like to ask few questions. Please go ahead. Okay, so I have noted down few questions. So ma'am, I wanted to ask that you have like firstly studied business studies, okay, and then storytelling and then theatre. So what inspired you to become a storyteller and motivational speaker now? Interesting. सबसे पहले तो ये है कि yes, I did my management studies. But when I came to India, you must have read my profile. I grew up in the Middle East. When I came to India, I found a different kind of India, which I was not aware of. In sense, जब हम लोग कभी भी country से बाहर जाते हैं और जब हमारी वहाँ परवरिश होती है कहीं दूर दराज, तो पेरेंट्स अपना कल्चर लेके जाते हैं, तो हम उस कल्चर के साथ पढ़े हुए, वो सोच के साथ पढ़े हुए। मगर जब तक मैं हिंदुस्तान आई तब तक वो हिंदुस्तान नहीं रहा था, बदल चुका था, और वो आज का मॉडर्न हिंदुस्तान बन चुका है, जिसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ तो कभी नहीं होती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। So I think picking up all those things, I decided that I wanted to be a storyteller because मुझे लग रहा था कहानियाँ कहीं खो सी जा रही थी, लोग कहानियों में believe नहीं करते, जबकि I would like to tell everybody the kind of impact stories have on people is more than 20 times, more than 20 times than a regular conversation. हम बच्चों को जब लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, मगर अगर कोई कहानी कह के उन्हें समझाया जाए, nothing to beat that. हम कितने भी बड़े हो जाएं, मुझे लगता है हम बच्चे ही हैं, हमको भी अपनी नाना नानी दादा दादी की कहानियाँ याद आती हैं, और बहुत सारी कहानियाँ आज भी वही कहानियाँ हैं. So story travels from one era to the other, one nation to the other, one city to the other, one household to the other. So कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती. And I think कहानियाँ कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाती है, कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है. I'm sure यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको वो गडेरिया की कहानी तो पता होगी, मुझे पता है, और किसको, कि वो हाँ शेर आ गया हर टाइम, और फिर
शेर नहीं आया, और फिर जब आया तो बस कोई नहीं आया। सो मुझे लगता है वहाँ हमने सीखा कि झूठ मत बोलो। So, अगर आप किसी को बार बार बोले झूठ मत बोलो, डोंट लाई, दे डोंट अंडरस्टैंड इट। बट जब आप कहानी सुनाते हो और बताते हो पता ऐसे हुआ था, और फिर वो शेर आया और शेर खा गया, और उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया, पता है क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलता रहा, तो वो याद रहता है। सो आई थिंक कहानियाँ बहुत पावरफुल होती हैं। हमारे बच्चों को भी, अब आई हैव अ सन हु इज़ 21 years old, सो जब वो छोटा था मैं बहुत कहानियाँ सुनाती थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, नया नया इंसान माँ बनता है तो बच्चे का भी पीछा छोड़ना नहीं। आई वाज वन ऑफ दोज, मतलब स्कूल भेज दिया मगर वहाँ पहुँच गई, प्लीज़ कैन आई कम एंड हेल्प विद द चिल्ड्रन, मैं बिस्किट खिला दूँगी, मैं कहानी सुना दूँगी। आई वाज दैट काइंड ऑफ अ मदर। सो आई थिंक ही मस्ट हैव बीन वंडरिंग, ये तो हर जगह जाती है, यू नो, घर पे भी यही होती है, मेरे स्कूल में भी बच्चों को बिस्किट खिला रही होती है। But then I realized kids enjoyed those stories. And then जैसे जैसे वक्त निकला, I realized बच्चों को अलावा मैं और लोगों के साथ कहानियाँ करना चाहती थी, ज़िंदगी की कहानी, क्योंकि हमारे पास सबकी अपनी कहानी होती है, और जब हम ग्रो अप हो रहे होते हैं किसी के पास मैनुअल नहीं होता है, कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं होता, कुछ चीज़ मेरे लिए सही और वही चीज़ किसी और के लिए जहर। सो वहाँ मेरी कहानी में ट्विस्ट आया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग स्टोरीज फॉर द पीपल ऑफ आवर एज, फॉर पीपल ओल्डर देन मी, कि गलती हो गई कोई बात नहीं, फेल होना ज़रूरी है, गिरे तो कुछ नहीं होता, उठ जाएंगे, धीरे चलो या भागो भागो, सफ़र वही है, उतना ही समय लगेगा, इत्मीनान से जियो, फूल देखो, बादल देखो, वर्षा एंजॉय करो, और वो चाय का कप और समोसा मत छोड़ो। सो यहाँ वो कहानियाँ शुरू हुई, फिर हो गया ओहो खाना था समोसा मगर कहेंगे कीश, क्योंकि स्टाइल हमारा बेकरार रहना चाहिए। दिल कहता है कि समोसे में प्राण है, मगर बोल देंगे एप्पल पाए तो कुछ ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे। सो फिर ऐसी कहानियाँ शुरू हो गई। तो आई थिंक कहानियाँ जस्ट ग्रू ओवर मी, एंड आई स्टार्टेड enjoying them because I thought that stories are meant for inspiration, for a connect, and for transformation. So inspire, connect, and transform. That became the mantra. So I think that is where my journey started. Like I enjoyed inspiring people because मुझे लगता था शायद मेरी एक कहानी से कोई और कुछ सीख ले, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। Because my tagline goes, one story can change many lives. And I believe in this. I truly believe in this. There was time when I was diagnosed with autoimmune disorder. I mean, there's a disease called lupus. Not many people would know of it. घर जाके homework करना, सब पढ़ना है इसके बारे में. So LUPUS. It's an autoimmune disorder. मैं नहीं बताऊंगी कि क्या होता है, ढूंढो, पता करो, क्योंकि जब मेरे ऊपर प्रोनाउंस हो गया था कि मेरे को लूपस है, तो मैंने सोचा यार ये तो कभी सुना ही नहीं, कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता था, कैंसर हो जाता, ये लूपस क्या है? सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई फाउंड ह्यूमर इन एवरीथिंग। इन फैक्ट व्हेन आई वाज कैरिंग माय मेडिकेशन फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू द अदर, देयर वाज दोस गंदे गंदे काढ़े वाली चीज़ें, यू नो, and when they would say, oh, you cannot take this, I said medicine, तो कहते नहीं, you can't, I said cancer, तो कहते oh बेचारी को कैंसर है, हाँ please ले जाइए। My mother used to get so angry, she said, why won't you say cancer? I said because he does not know lupus, but he knows cancer. So I mean, I think I really felt कि that was my way of connecting people. वो कहते हैं ना कि सब कुछ लोग यहीं छोड़ जाते हैं, ये तो हमें पता ही है, बट बहुत सारा खजाना अपने साथ कहीं लेके भी जाते हैं। वो है मेमोरीज़ का, वो है यादों का। जब लोग हमसे दूर चले जाते हैं, हम ये याद नहीं रखते कि उसने मुझे मतलब क्या सॉलिड दे दिया, बट हाँ ये याद रहता है कि हम लोगों ने साथ में क्या किया, या हाउ डिड समबडी मेक यू फील। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई स्टार्टेड बिलीविंग इन, and that's exactly what I do. I try to touch lives of people because I thoroughly enjoy it. And मुझे लगता है जब
मैं मुसीबत की घड़ी में थी या कभी ऐसा हुआ और उस टाइम शायद मेरे पास कोई नहीं था, बट मैं वो बनना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी दैट टॉर्च बेरर ट्राइंग टू शो द लाइट टू मैनी अदर्स जिनका शायद कोई ना हो या शायद कोई हो भी और ना हो, बिकॉज कई बार हम बहुत सारी भीड़ में भी अकेले होते हैं. ये हम सब लोगों ने महसूस किया है. So of course theatre exponent was a part of being a storyteller. I started doing a lot of theatre with children. अपनी कहानियाँ खुद लिखती थी, and it is also they say in my genes. A big chunk of my family is into filmmaking, and that's how I started my journey. I know आपका सवाल छोटा था, मेरा जवाब बहुत लंबा है. This is called storytelling. Yes. Yes. So, yes, seriously, wonderfully you explained it. And one more question I have, that Sure. you are known as Ramta Ram. So what is the meaning behind this name? Why you have chosen this name, or someone has given you this name? नहीं नहीं, मुझे कोई कुछ दे के नहीं जाता, मैं खुद ले लेती हूँ. रमता राम केम टू माई माइंड कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ. मैं खाली शिफाली चोपड़ा नहीं हो सकती. चोपड़ा निकालूंगी तो शिफाली रह जाऊंगी, शिफाली निकाल दिया तो बस चोपड़ा. तो I have to be something beyond that. Who am I? Then I realized मैं किसी की नहीं और कहीं की नहीं और सबकी हूँ और हर जगह की हूँ. इसलिए मैंने अपने आप को रमता राम बुलाना शुरू कर दिया. A wandering soul. Actually जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जैसे मैं यहाँ आई हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं भूल भी जाऊँगी कि मेरे घर वाले भी एग्जिस्ट करते हैं. इट्स इन माई नेचर. सो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रही होती हूँ, बहुत ड्रामा, बहुत फुल ऑन, ओहो मुझे जाना है, ओह माय गॉड, मैं बड़ी उदास हो रही हूँ, बहुत ही उदास. बट जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ और वो गेट जब क्रॉस करती हूँ, उसके बाद मैं उन लोगों को भूल जाती हूँ बहुत कन्वीनियंटली. और मैं जहाँ जाती हूँ मैं उन्हीं की हो जाती हूँ और मुझे लगता है वही मेरे रिश्तेदार हैं. तो समटाइम्स एवरीबडी वंडर्स कि कुछ हो गया और ये हमें भूल गई तो क्या होगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी होंगी ना मैं बड़ी खुश होंगी, बिकॉज दे वुड बी लाइक माई फैमिली. माई सन सेज माई मदर्स फिल्टर इज मिसिंग. दैट्स हिज फेवरेट थिंग. बिकॉज वो जैसे हम लोग छोटे थे तो आई वुड हियर ऑफ स्टोरीज कि यू नो लाइक गांव का बच्चा, शहर का बच्चा, अपना एक कम्युनिटी का बच्चा, एक महल्ले का बच्चा. अनफॉर्चुनेटली ये हाई राइज बिल्डिंग्स ने सब खत्म कर दिया और इट्स जस्ट न्यूक्लियर फैमिलीज के बच्चे होते हैं. तो हम लोग उस माहौल से गुजरे हैं कि जब छुट्टियों पे भी आते थे और ताऊ जी या चाची या यू नो बुआ कुछ कह भी देते थे तो दो चार थप्पड़ भी लगा देते थे, तो हम घर जाके कंप्लेन नहीं करते थे क्योंकि हमें पता था घर जाके हमें दो और मिलेंगे. आजकल समय अलग हो गया है. मैंने तो इतनी मार खाई है बचपन में, इतनी मार खाई है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ढीठ हो गई थी, ज़बरदस्त ढीठ. आज भी मैं अपनी मम्मी को कहती, वैसे मैंने कहा मम्मी सिर्फ पढ़ाई में ही तो वीक थी, बाकी तो देखो आपका बच्चा कितना स्मार्ट था, बट आपने मुझे बड़ी धुलाई करी, तो क्या फ़ायदा हुआ. वो खुद तो डॉक्टर है मगर मैं तो डॉक्टर कभी बनना ही नहीं चाहती थी. मैंने कहा देखो मम्मी, आपने लोगों का इलाज किया है, मैं लोगों को अलग टाइप का इलाज करती हूँ, आप इसमें कितने प्राउड हो जाओ, आप ये सोचो. सो आई थिंक wandering soul or a Ramta Ram is something about I belong to everybody. That's wonderful. Yeah. Wonderful. And you told us that you are like कि जहाँ पे जाते हो वहीं के हो जाते हो. वो तो है. So that's really very good. That being present at the moment is very much important for all of us. Thank you so much. अच्छा मैम, तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगी. अच्छा. So what is the one message you wish to give us to all of us today? See, one small little message that I would like to give everybody is focus on now. And I mean it. जो हो चुका है वो तो हो चुका है और जो कल आना है हमें पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा. So जो कुछ है वो आज है. That is my message for everybody, that stay positive, stay happy, and it's not something difficult. Believe me,
जब आदमी बिल्कुल रॉक बॉटम पे पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद जगह नहीं होती, उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता. द ओनली वे इज अप. सो एवरी टाइम वी थिंक वी हैव हिट रॉक बॉटम, you are rest assured the only way is up. And yes, one more question I have. If I would say summarize your life in one word, what that word would be? Attraversiamo. Okay, please That explain. means attraversiamo is the Italian word and it means crossover. So whenever I am in a difficult situation, I think attraversiamo. I will cross over. Yes, so in audience, anyone would like to ask any question to ma'am, they can also ask. Yes, ma'am. इससे पहले आप मुझे पूछें कुछ, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपने कितना खूबसूरत सुनाया, मज़ा आ गया. हम लोग एक स्टोरी सुनना चाहेंगे आपसे. अरे स्टोरी, बट आपने एक तार छेड़ा तो मुझे एक ख्याल आया कि मैं भी आज आप सबको एक पोएम सुनाऊंगी. ओके. कहानी के लिए हम फिर मिलेंगे, है ना. कुछ टाइम पहले हम सब मज़हब की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि हम सब एक हैं और हम जेन्युइनली एक हैं. ये कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी थी. आई एम सॉरी अगर उस टाइप की ना हिंदी या उर्दू हो जो, मतलब इट्स अ वेरी दिल से लिखी हुई पोएम, तो मैं वो सुनाना चाहूँगी. हाँ, दिल तक जरूर पहुंचे. वो तो है. मैं कुछ करूँ और दिल तक ना पहुँचे, ऐसा हो नहीं सकता. आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, हमको कुछ नहीं आता है. क्या आप बता सकते हैं कि आम कौन सी कौम का है? क्या आप बता सकते हैं आम कौन सी कौम का है? अरे चलो ये छोड़ो. चमन लाल की जलेबी, उसकी दुकान की जलेबी तो सुना होगा, वो तो पता होगा कि वो कौन से कौम की है. अच्छा, कोई जवाब नहीं. हो ही नहीं सकता. ये जो कबूतर गुटर गुटर गूं करते हैं, हिंदी या उर्दू में क्या समझा रहे हैं? कभी मंदिर को तो कभी मस्जिद को अपना घर बना रहे हैं. समझ के बाहर है ये माजरा. जब कोई दूर दराज राग गाता है या गुनगुनाता है, वो कौन सा तार छेड़ता है, दिल का या हृदय का? ये पेड़ हमें चुन चुन के छाया क्यों नहीं देते, लात मार के भगा क्यों नहीं देते? बहुत गलत है, बहुत गलत. पूछते क्यों नहीं कि तू किसका बंदा है, राम का या रहीम का? ये पीर फकीर संत क्यों अपनी धुन में मस्त है, मलंग है, घूमता है, इबादत और आराधना में फर्क नहीं जानता? सिखाओ इन्हें, इल्म नहीं है इन्हें, हमें जोड़ने की कोशिश में लगे. अरे बात क्या करते हैं, तेरा खुदा मोहब्बत सिखाता है और मेरा ईश्वर प्यार. अरे सोचो, क्या वो एक नहीं? पर अफसोस मना, हम कुछ सीख ना पाते हैं, इंसान ना बन पाते. No word for this poem. Seriously wonderful. And, Thank you. Yes. Any other question anyone want to ask? हाँ बोलिए. Like it's a question, as in I have the biggest problem with dealing with change. What is your opinion on it? चेंज, हर पल बदल रही है जिंदगी. यही है इसका जवाब. चेंज इज एविडेंट, इट विल हैपन whether you like it or not. चेंज
हम रोज़ चेंज हो रहे हैं। आप जो कल थी वो आज नहीं है, जो आप आज हैं आप कल नहीं होंगी। उसको ग्रोथ कहते हैं। बदलाव इज़ ब्यूटिफुल। जो कहते हैं ना लोग कि अरे तू बदल गया, हाँ तो मैं बिल्कुल वैसा ही रहता जो मैं 18 में था, तो मेरी ग्रोथ क्या रही। हमारा हाल डिब्बे के जैसे होना चाहिए, जैसे लोग डिब्बे को पीट के उसके बाद उसकी कुछ अलग ही डायमेंशन निकल आती है, वो होती है लाइफ। कई बार आपने देखा है और सुना होगा कि 100 लोहार की एक सॉरी। सो आप रियलाइज करेंगे कि कितनी बार पीटा जाता है तो कोई चीज़ टूटती नहीं है, मगर वो एक लास्ट बार कुछ होता है तो वो लास्ट बार से नहीं होता, वो so many times beating up के बाद होता है। So never be afraid of change. Change is going to happen, and if you look forward to change, you will enjoy that beauty, you know, in a very beautiful manner. अगर एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, एक कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर बहुत स्ट्रगल करता है, लिटरली स्ट्रगल करता है। इफ यू हैव एवर सीन अ कैटरपिलर स्ट्रगलिंग एंड इट रियली फील्स इट्स गोइंग टू डाई, इट रियली डज फील दैट, बट वो जब इतना स्ट्रगल करने के बाद जब वो बटरफ्लाई बनता है ना, and it's so beautiful. Nobody thought a caterpillar would become a butterfly till it actually did become one. So imagine when you struggle because of a change, you know you are going to become something more beautiful. एक सवाल है मेरा। आपने बताया आपकी परवरिश बाहर हुई थी और the idea of Hindustan that you had was very different from the Hindustan that you saw when you came here. इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि आइडिया होता है किसी चीज़ का, दूर से देखा तो बहुत अच्छा होता है और पास जाके देखें तो वो कुछ और ही लगता है कि भाई हम तो मतलब पता ही नहीं था कि क्या उस पर कैसे कोप करना है, या वो उसमें उसको उस एक्सपीरियंस को कैसे डील करें, उसके बारे में कुछ। जब हमने बहुत सारी बातें सुनी होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो जब मैं इंडिया में आई तो जब लोग कहते थे अरे आइए हमारे घर, तो मैं बड़ी सीरियस हो जाती थी कि हाँ भाई इन्होंने बुलाया है, बहुत सीरियस। अब मुझे क्या पता, ये तो ऐसे कभी आना कभी मिलेंगे, कभी कब मिलेंगे। जब मेरे को शुरू में बहुत टेंशन में आ जाती थी कि इन्होंने बुलाया और हम नहीं जा रहे, लाइक वी आर एट फॉल्ट, बट लिटिल आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि ऐसे नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने कब बोला, ऐसे उन्होंने बोला था कभी आना, बोला था ऐसे, कभी आना कब आना, मैंने कहा ये तो नहीं बोला। कहते अरे भाई इंडिया में ऐसे बोलते हैं ऐसे, अच्छा कभी आना, कभी खाएंगे, कभी मिलेंगे, तो मिलते नहीं, ये सिर्फ तस्वर में है, ब्यूटी। सो उसके बाद जैसे आस्ते आस्ते समझ आने लगा, वो हम लोग बड़े ब्लंट हैं, मतलब अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा तो चुप रहेंगे शायद, या बोल भी दें कि नहीं अच्छा। और वो कुछ जब यहाँ देखा तो देखा बहुत मज़ा आ गया जी, मज़ा ही आ गया। क्या बकवास था ये, अरे ये क्या हो गया, टोटल डिफरेंट। बट वी रियलाइज्ड कि this is what happens when you start experiencing what you had never thought। उसमें क्या होता है, जो आप बोल रहे हो ना कि कैसे उसके साथ कोप अप करें, मुझे लगता है there is always humor to it. Today I can laugh about it, today I can talk about it, today I can share stories and get away with it, because जब मन साफ होता है तो आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं कह सकते। एक छोटी सी यहाँ कहानी सुनाऊंगी। जब मैं इंडिया आई, मैं शादी करके इंडिया आई, तो कुछ टाइम बाद जैसे हर फेस्टिविटी होती है, दिस इज़ फॉर एवरीबडी एंड आई नो दिस इज़ गोना बी अ ग्रेट लव बिकॉज आई वाज रियली फनी। सो आई रिमेंबर, तो माय फादर इन लॉ टोल्ड मी कि बेटा आज ज़रा टाइमली तैयार हो जाना,
आज माता जी का श्राद्ध है, पूड़ी हलवा एंड आलू की सब्जी वब्जी सामने वाले घर में दादी जी के घर में आना है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो श्राद्ध की, बहुत बहुत मुबारक हो। एंड ही इज लाइक श्राद्ध बेटा वो लोग मर जाते हैं, उसके बाद वो श्राद्ध का खाना था। हम लाइक ओह बस तुमको ये नहीं मालूम, तुमको श्राद्ध नहीं पता? आई को एक्चुअली नहीं पता। मैंने कहा हमारे घर में कोई मरा ही नहीं है तो मुझे श्राद्ध के बारे में कैसे पता? मैंने कहा और आप तो हैप्पी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, पूड़ी हलवा खीर, तो मैं कहाँ से सोचूंगी कि कुछ सैड हो गया। इस लाइक नहीं बेटा, देन ही कॉल्ड अप माय फादर, आपकी बेटी को श्राद्ध के बारे में नहीं मालूम? तो उन्होंने कहा जी उसको बाहर पड़ी, उसको कुछ नहीं पता होगा। मैंने कहा मैं बता रही हूँ हमारे घर में कोई मरा ही नहीं है तो मुझे कहाँ से पता चलेगा? सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर ऑनेस्ट डीलिंग इन सिचुएशंस, व्हेन यू आर ऑनेस्ट with saying what you're feeling inside and there is no pretense, you will realize that there is no complication and you learn from a situation. So today I can narrate this story. This story is about 26 years away, almost 26 years away from what I'm sharing today. So today when we talk about it, we laugh कि अरे ऐसे भी हुआ था, इसको श्राद्ध के बारे में पता नहीं था। हाँ नहीं पता था, so but now I know. So I think the beauty is in sometimes it is if you don't know a thing you learn about it and भाई पढ़ने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है, तो आप जब चाहो सीख सकते हो। We are students of life. I always call myself a student of life. मैं कोई चीज़ नहीं जानती तो my first go to person is my son. हेलो मोई, इसका क्या मीनिंग है? कहते हैं डिक्शनरी होती है, उसको खोल के देख सकते हैं। मैंने कहा नहीं, आई थॉट इट विल बी इजी। कहते हैं देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। मेरे वर्ड्स मुझी को, सो फिर खुद आई फाउंड इट, थैंक यू, ओके, इट्स लाइक दैट। सो देयर इज नथिंग, देयर इज, आई थिंक एवरी डे इज सो ब्यूटिफुल, देयर इज सो मच लर्निंग एंड व्हेन यू एंजॉय योर लाइफ इन दिस वे यू रियलाइज लाइफ इज ब्यूटिफुल। Yes. So thank you, ma'am. It's an absolute honor to extend a heartfelt vote of thanks to our esteemed guest, Mr. Sefali Chopra, a true storyteller, an inspiring motivational speaker, and a change maker. I would also like to thank Naz Farah, organizer of this event, for wonderfully organizing this Thank you, gathering. Farah. So on behalf of everyone, I sincerely thank you, ma'am. Thank you so coming much. here and sharing your insight with all of us. Thank you so much. I hope you enjoyed my stories. Yes.